Am I audible? Yes, sir. Shall I start? Yes, sir. Okay. So in the last class, we worked upon how to define function and the loops. In the today's class, we will see some advanced Python like lambda and map, filter, reduce. Means there is a problem with the return function is that you can iterate one at a time. You cannot iterate, let's suppose if you are just defining anything or you are just giving any logic. So once you return it, then your code will be stopped. But let's suppose if you want to make these kind of things, then can you do it? Yes, definitely. By the help of lambda, map, filter, reduce, you can do these kind of things. So let's see, in this class we will see how to work on this advanced Python. So here you can see there's a lambda function. So this is the function also inbuilt in the Python. Now let's suppose if I want to define function, so I have to write df sum a b. These are the two arguments and I'm just returning a plus b. So by the help of this function, I can just add two values. So if I give 2 plus 3 or maybe 4 plus 5, I'll give by simple calling this function whose name is sum. But see, if I want to do these kind of things of lambda, how may I do it? It's very, very simple. So let's see. So there is a lambda argument in the expression. Expression means that whatever the logic you have given under expression, you can do it and you will get your answer. So here I'm just simply writing lambda x plus 2 means I'm giving a simple argument where x and lambda you have to do it just add by 2. Simple. So there is no need to write def, no need to write just name of the defining function and use the parenthesis and give that argument, and after that you have to return x plus 2. Simply if you give that x argument, then you have to write these things. No need to do these kind of things. Simply call it lambda and x plus 2. So here how to just do these things? So simply I call it lambda x plus 2 under w. So I simply sorry, I simply assign one variable whose name is w, and under the w I'll just give simple logic lambda x plus 2. Let's see, I simply call it then w, and there's a value which is related to the 2. So here you can see, and you will get the answer in the output section. सो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल लैम्डा एक फंक्शन क्रिएट किया और लैम्डा फंक्शन में कहा कि मैं कोई भी आर्गुमेंट दूंगा, ठीक है, उसको आप क्या करो x प्लस 2 में वैल्यू दे दो, ठीक है। सिंपल आपने ये किया और उस पूरे लॉजिक को कहाँ असाइन किया, वेरिएबल में असाइन किया। अब वो जो वेरिएबल असाइन हुआ है वो किससे रेफरेंस हो गया, उसके आर्ग्यूमेंट से, यानी w x simply connected with the variable w, and if you give that argument w2, so it directly connects with the x plus 2. तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली वहां से जाके कनेक्ट हो जाएगा और उसका जो आपने लॉजिक दिया है वो लॉजिक आपको मिल जाएगा। Similarly in this way, in the line number 10, x equals to, so I'm simple assigning that particular logic into the variable x. If I call that logic with a argument 5, then I'll get my answer 15. It's very, very simple. No need to just define the function whatever, because you can do the same thing by the simple lambda function in a one line. And let's suppose there are two arguments a and b, and if you want to multiply these two arguments, can you do it? Yes, definitely. A multiply b, you can do it, and simply call y 10 comma 8. It will give answer 10 multiply 8, which is 80. So by the help of lambda you can do these kind of things. So here if I want to do, let's suppose lambda define, I simply call mult a b return a multiply b. अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना होता तो मैं इस तरह ही लिखता, ठीक है। और अगर इसका अगर मैं रिप्लेस करूं लैम्डा से, सो मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, लैम्डा
A, B same, there is a colon, and there is no need to write return. Just simply give your expression, which is A multiply B. Simple. Similarly, if you have three arguments A, B, C, and if you want to do A plus B plus C, then you can call it Z1, 2, 3. Then you will get your answer. So that's the beauty of the lambda. But let's suppose if you want to apply some conditions, can you do it with the lambda also? Yes, you can do it also with the conditions. How to do it? Just simple. In this way, you can simply do it. So if I give lambda x, x multiplied 2, if x modulo of 2 exactly equals to 0, else x. यानी मैं ऐसे क्या कह रहा हूँ, क्या जो भी मैं वैल्यू दूं पहले उसे चेक करो क्या वो डिविजिबल बाय 2 एंड इट्स रिमाइंडर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है. अगर है तो क्या करो, x मल्टीप्लाई 2 करो, नहीं है तो क्या करो, एल्स x ही रहने दो उसे. यानी there is a condition which is associated with if and else. So simply call it that particular A. So A is 3, 3 is not divisible by 2 and its remainder not equals to 0. So we will get 3. Otherwise, let's suppose if you write 4, you will get your answer 8. Got it? So again, there is a, let's suppose if you want to write this the same condition with the defining function, then you can do it by the help of maybe if you just calling that value, then if you just call this one, return this kind, else return this. So simple. 4 line of code you can write in a 1 line. So x, this is your returning. कब, जब if condition true है, else अगर condition नहीं true है तो आप x return कर दो. ठीक है, it's simple. Now there is a problem with the lambda also. What's the problem? You can iterate your value one by one. यानी जो रिटर्निंग फंक्शन में थी वही लैम्डा में फंक्शन में प्रॉब्लम है, यानी मुझे वन बाय वन वैल्यूज देना पड़ेगा. देयर इज नो सच थिंग रिलेटेड टू द मल्टीपल आइट्रेशंस. यानी ये आइट्रेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता. तो हाउ मे आई डू इट दिस काइंड ऑफ वर्क? बाय द हेल्प ऑफ मैप, रिड्यूस एंड द फिल्टर थिंग्स. सो लेट्स सी, देयर इज अ फंक्शन मैप, देयर इज अ सिंटैक्स फंक्शन एंड द आइट्रेबल. मींस अब आपको लूप क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट योर फॉर लूप और मे बी डिफरेंट थिंग. आपके पास मैप है, यू हैव टू गिव योर लॉजिक अंडर द फंक्शन एंड आइटरेबल. जो भी आप दे रहे हो, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में से मुझे एलिमेंट फेच करने हैं. अगर मुझे डिफाइनिंग फंक्शन करना है, मैंने कहा ओके ऑड एंड इवन लेट्स सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंडीशन देना पड़ेगा, फिर अपेंड कराना पड़ेगा, फिर एल्स में जाना पड़ेगा, अपेंड कराना पड़ेगा, देन रिटर्न करना पड़ेगा. ए एंड बी में अगर मैं दो लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे इन दोनों को रिटर्न करना पड़ेगा. यानी 8 to 9 लाइन्स ऑफ कोड. ठीक है, बट अगर यही मुझे वन लाइन में करना है, कैन आई डू इट? यस, डेफिनेटली यू कैन डू इट. हाउ टू डू इट? जस्ट लेट्स सी. सो बाय द help of map, you can do it. So let's suppose there is a addition n plus n, means whatever argument I have given under the defined function whose name is addition, I'll get n plus n, means the addition of the same value. So can I do it by the help of map function? Definitely I can do it. So this is my iterable. ये मेरा list है जो iterable है, जिसका मैं value one by one iterate कर सकता हूँ. Then there is a map. There is a defined function. अब यहाँ पे मैंने कोई for loop नहीं लिखा है. Let's suppose if I अगर मुझे for loop में करना होता तो मुझे कैसे करना पड़ता? पहले for loop लिखना पड़ता, then उसके बाद मुझे return कराना पड़ता. क्योंकि ये तो क्या करेगा, इस वैल्यू को वन बाय वन आइटरेट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सिंगल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, प्रॉब्लम ये है, बट मैप के थ्रू मैं ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूँ. एंड सिंपल, आई जस्ट कॉल इट माय डिफाइनिंग फंक्शन n plus n, and there is a list, simple call map addition numbers, and there is a list which is 2 4 6 8. So 1 plus 1 2, 2 plus 2 is 4, 3 plus 3 is 6, and 4 plus 4 is 8. Got it? So by the help of simple one line code, you can just make a list of their successive values. So 1 plus 1, not successive, it's respective values. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, and 4 plus 4. तो आपको ये आंसर मिल सकता है.
Got it, everyone? Are you able to connect with me? Yes or no? Was W is the name of the function? It's a variable. W is a variable. Otherwise, you won't get your result. You have to define your function. Lambda आपको लिखना है, तो you have to define your variable first, and under the variable you have to write your logic with your lambda and pass your argument with the variable support. क्योंकि वो वेरिएबल नहीं रहता, फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड इन द ऑब्जेक्ट यू हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो इसीलिए. गॉट इट मुस्कान? Yes. एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? लेट्स सी, एक बार इसको रन करते हैं. ठीक है, मैंने रन किया, सिंपल, एंड सिंपल इसे कॉल करते हैं एडिशन. ठीक है, and let's suppose my argument is in numbers. This one, if I call it this, तो ये क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4. Got it? प्रॉब्लम समझ में आया? बट मुझे क्या करना था? इसे क्रिएट करने थे, यानी जो उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू उसी में एडिशन हो. तो सिंपल मैंने क्या किया, मैप से इसे यूज किया. Can anyone tell me how may I do it by the help of defining function with the help of for loop? अगर मुझे for loop में करना होता तो मैं इसे कैसे करता? यहाँ पे मुझे पता चल के वन लाइन का एक कोड से मैंने सिंपल आंसर गेट कर लिया. बट हम लोग तो डिफाइनिंग फंक्शन कर चुके हैं, for loop भी पढ़ चुके हैं. तो मुझे अगर सेम रिजल्ट चाहिए 2 4 6 8, how may I do it? The same thing by the help of defining function. अभी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना कि ये प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रिटर्न क्या करेगा, 1 by 1 आइट्रेशन नहीं करेगा, n+1 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 रिटर्न कर दिया उसने. बट मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मुझे तो 1+1 2+2 3+3 3 और 4+4 चाहिए था इन अ लिस्ट. कैसे होगा? यस, क्या लॉजिक लिखूं मैं? मुझे बताओ, यहाँ पे बताओ क्या लिखूं मैं. मुझे डिफाइनिंग फंक्शन करना है, यानी डिफाइनिंग फंक्शन मींस दैट कि मैं कुछ भी आर्गुमेंट उसके अंदर दे सकता हूँ, वो वर्क करे. ओके, मुझे पूरा कोड बताओ, कोई भी. क्या करना पड़ेगा? एनीवन? यस मुस्कान. Sir, we will make a for loop for this numbers list. ओके, मुझे फंक्शन डिफाइन करना है. आई हैव टू डिफाइन माय फंक्शन. हाउ टू डू इट? Sir, already function तो defined है ना addition वाला. ओके, सो इन दिस आई हैव टू चेंज समथिंग. क्या करूँ अब? Sir, इसी के ऊपर इसी के नीचे मैं ऐड कर दूंगी ना for I Okay. numbers. फॉर आई इन नंबर्स, मे आई राइट नंबर्स? नहीं, n. ग्रेट, गुड. देन And then we will return I plus I. ओके, दिस वन. Yes, sir. Yes, sir. नाउ ओनली 2. ये लास्ट क्लास लिया था आपने मुस्कान? No, sir. तभी. कोई बताएगा ये 2 क्यों आया सिर्फ? सर बिकॉज हम लोग यहाँ पे रिटर्न यूज कर रहे हैं. तो फिर हम क्या यहाँ करूं? पे इफ प्रिंट रिटर्न की जगह प्रिंट लिख देंगे देन इट विल प्रिंट द सीरीज लाइक एडिशन ऑफ द But सीरीज. let's suppose if I want to just store all the values into a different variable, then how may I do it? सॉरी, कैन यू प्लीज पार्डन? Let's suppose आपने कहा यहाँ print लिख दो. Okay, I simply write print. ठीक है. Sorry, it's my mistake. ठीक है. यस सर. But there is a problem. WR के अंदर मेरे पास कुछ है ही नहीं. Again, got it?
So मैंने Yes. बताया था there's a problem with the print and the return things. Print is just about the output of your logic. It is not about your output. So let's suppose if you are defining the function, then definitely there is a purpose. The purpose is that you have to store the value, whatever the logic you have given in your function. So again, you have to return all the values. How you have to do it? Anyone? Last time हमने किया ये सब. So we can store it in a variable and then we can print How? return that How? variable. How? Just tell me. Uh, I don't know how to do it. You just tell me. Good. Okay, What is the Anshika. question? Yes, sorry. What is the question? क्वेश्चन इज दैट कि जो अभी हम मैप से आंसर आ रहा था वही मुझे डिफाइनिंग फंक्शन से आंसर चाहिए. तो सर वो तो आ गया ना. नहीं आया ना. यू विल गेट ओनली 2. बट सर जब आपने उसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दी WR में तब तो आएगा ना. इट्स नॉट. WR में जब आप कर रहे हो वो आपका स्टोर नहीं हो रहा है, वो आपको सिर्फ आउटपुट दे रहा है लॉजिक का. जब आप प्रिंट यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग प्रिंट I plus I means is that you won't get the answer, you simply get your output of your logic. Got it? If I call WR, there is no value in my variable WR because ये क्या है, आप देखो यहाँ पे आउटपुट लिख के आ रहा है, कहीं भी क्या नहीं आ रहा है. आप ये 2468 को कहीं यूज ही नहीं कर पाओगे. यानी वट एवर द लॉजिक यू हैव गिवन अंडर द फंक्शन whose name is addition, you won't able to use anywhere. That's a problem with the print thing. You will get the output, whatever the logic you have given under the defining function, you will get the output of your logic in your console part, but you never be use these kind of logic maybe for some reasons. So क्योंकि वो उसके मैंने आपको पहले भी बता रखा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड रिटर्न. अगर मुझे इसे आंसर चाहिए, यानी मैं WR में स्टोर कर रहा हूँ, मेरे पास वो वैल्यूज स्टोर होके आ जाए, तो उसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा. कैसे करूंगा? यस, एनीवन? सर वी कैन so मेक एम्प्टी लिस्ट. हम क्या करें? मुझे नहीं पता, कोड बताओ मुझे. क्या करूंगा? सर वी कैन पुट 2 आर्गुमेंट्स हियर. एडिशन में एक m डाल दो. ठीक है. और फॉर के नीचे ही m डॉट अपेंड I कर दो. नहीं, हाँ m, हाँ रिटर्न, और ये इसको रिटर्न में डाल दो सारी स्टेटमेंट को. दिस वन m डॉट अपेंड I. हाँ इसको हम रिटर्न में डाल देंगे इसको ओके, यहाँ पे लिखो रिटर्न. नहीं, ऊपर ही इस m डॉट अपेंड को हम रिटर्न में डाल देंगे. ओके, और और लॉजिक सोचो क्या बोला है आपने. Have to हाँ, think about this thing. और फिर हम एडिशन में नंबर्स कॉमा जो हमने एम्प्टी लिस्ट अगर हम बाहर बनाते हैं, जैसे m नाम की हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली, तो एडिशन में नंबर्स कॉमा m डाल देंगे. ओके, सो योर स्क्रीन इज स्टक. वेट. गुड रितिका. यस, हाँ क्या करूँ अब? सर अब हम WR के ऊपर एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे. m इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स और WR एडिशन नंबर्स के बाद हम m लिख देंगे कॉमा m, और फिर This one? प्रिंट WR कर देंगे. ओके, numbers and m. सर हमने प्रिंट नहीं किया WR. अगर मैं WR लिखूंगा तो नहीं आंसर आएगा, प्रिंट लिखूंगा तभी आएगा. हाँ, This one.
जो आप बोलते हो ना, पता होना चाहिए वो क्या बोल रहे हो. Coding is not just about hit and trial. Sir, I was not hitting and trial. I was just putting my logic that I created an empty list and I appended that I in that whatever. I have not added the number I plus I. Okay. Anyone else? क्या करेंगे और बाकी? This logic given by Ritika. Two, 4, 6, 8. That's a perfect logic. इसमें क्या प्रॉब्लम था? It's very very simple. प्रैक्टिस नहीं किया ना लास्ट क्लास में? Yes, this logic is also good. Anshita, good. Definitely good. This is also good. You can do in this way also, as if I just create another variable as equals to s plus I, definitely, and then append it as. And let's suppose if you want to just reduce one line of code, then that's the best way. आप एक लाइन reduce करना चाहते हो तो you can simply append I plus I. No need to just create another variable as equals to s plus I, then append a dot append s. No need to do. But it's a simple thing. तो ये कितने लाइन का कोड था? 1 2 3 4 5. It's a 5 line code, ठीक है? But by the help of the map filter reduce, you can do it. It's simple. It's very very simple. It's a one line code. ठीक है? Practice नहीं करोगे तो again it's a problem of yours, is not mine. Practice करना पड़ेगा. There is no alternate. Got it everyone? ठीक है? तो practice करो please. Just do practice. Similarly, let's suppose there is a function even. अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ वो वैल्यूज को अपेंड करो जो इवन वैल्यूज है. Again 1 2 3 4 5 6 line of code. Can I do the same thing by the help of map? Definitely I can do. Simply no need to just. Again there is a problem with the defining function is that क्या iteration. Again I have to just write for loop. Then I have to create empty list, and then I have to just write the condition and then append it and then return that particular part जो जहां पे मैं स्टोर करना हूं. ठीक है? बट मैप में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैप में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्या करेगा, मेरी जो आइटरेबल है उसको वन बाय वन आइटरेट करेगा और उसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेगा एंड देन वो मुझे रिटर्न करेगा. तो सिंपली मैंने इसे कॉल किया एंड सिंपली मैंने एक लिस्ट दिया, दिस इज माय लिस्ट, कॉल इट सिंपल and you will get your answer none 2 none 2 none 4 none 6. यानी इसमें प्रॉब्लम क्या आया? मैप में जब अभी तक हम लोग विदाउट कंडीशन यूज कर रहे थे, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू द नन. बट इफ आई एम यूजिंग द कंडीशन व्हिच इज रिलेटेड टू if 1, आई विल गेट नन. मींस पहली वैल्यू पे गया यानी उसे कुछ भी नहीं मिला, तो उसने कहा नन, क्योंकि ये कंडीशन उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सेकंड कंडीशन पे गया, उसे मिला, ठीक है, तो उसने उसका आंसर दे दिया. थर्ड कंडीशन पे गया, अगेन नन. फोर्थ पे गया, नन नन. मींस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मैप व्हेन यू आर यूजिंग कंडीशनल थिंग्स. जब आप कंडीशनल यूज कर रहे हो तो अगेन इसमें आपको क्या मिलेगा? मैप के संग एक प्रॉब्लम मिलेगा जब आप डिफाइनिंग फंक्शन यूज कर रहे हो. तो इसे क्या ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली देयर इज अनदर व्हिच इज फिल्टर. लेट्स सी. क्या अगर मुझे यही और कोड को रिड्यूस करना होता, ये मुझे 4 लाइन का कोड लिखा है, क्या मैं इसे और रिड्यूस कर सकता हूँ क्या कोड को? हाँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ. किसके हेल्प से कर सकता हूँ? लैम्डा के हेल्प से मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ. यानी अभी हमने देखा लैम्डा एक्स, और मुझे चाहिए क्या? जब मेरा फंक्शन कैसा हो, जब मेरी वैल्यूज इवन हो तो इफ कंडीशन, एल्स आप उसे कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो. तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं देयर अ लैम्डा, हाउ टू डू इट विद अ वन लाइन ऑफ कोड. सिंपल. तो यानी अभी हमने ऊपर देखा था 1 2 3 4 x x प्लस एक्स, यानी आपने अपेंड किया था, ये सब किया था, ठीक है.
क्या आप मैप लैम्डा से सेम वर्क कर सकते हो? डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर 2 4 6 8 10। क्या मेरे पास अगर कंडीशंस ऐसी हैं जो मुझे कंडीशन पे यूज करनी है, कैन आई डू इट? यानी मुझे क्या चाहिए? इवन वैल्यूज चाहिए। कैन आई डू? यस, यू कैन डू इट ऑल्सो, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मैप इज दैट क्या वो क्या करेगा? कंडीशन आ गया तो आपको आंसर देगा विच इज ऑफ नन। तो यहाँ पे आपने कहा इफ कंडीशन है तो ए रिटर्न करो, एल्स है तो जीरो रिटर्न करो। मैप देयर इज अ फंक्शन, you have given that logic, and LP is just all about your iterable. Simple, you have to call this thing, and simple you will get the answer 0 0. If you won't give that else part, map will return none part. अब एक और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने कहा ठीक है मैं else part यूज नहीं कर रहा, लैम्डा के संगे ठीक है इफ कंडीशन है, देयर इज अ इफ कंडीशन, मुझे else part यूज नहीं करना क्योंकि ऊपर भी हमने डिफाइनिंग फंक्शन पे यूज नहीं किया था else part। लेट्स सी, जैसे ही मैंने उसे else part हटाया then it will give error which is invalid syntax. So means is that अगर मैं lambda यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? lambda के संग if कंडीशन में else part को यूज करना पड़ेगा। यानी मैंने कहा ओके अगर else part नहीं यूज करूंगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मुझे इनवैलिड सिंटेक्स मुझे देगा। तो ये आपके पास इस तरह से आप उस पर वर्क कर सकते हो। यानी आप जो अभी तक आप 5 लाइन 6 लाइन का कोड यूज कर रहे थे, यू कैन डू द सेम टास्क बाय द हेल्प ऑफ 1 लाइन ऑफ कोड आल्सो। Similarly, you can do lots of things. There's a line number 90 and the 91. There's a two numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then use a simple give that logic which is related to the 1 plus 4, 2 plus 5 and 3 plus 6. Simple. It's a one line code. Can you do the same thing by the help of defining function? कैसे defining function से कर सकते हो? Anyone? ठीक है, वन लाइन कोड हो गया बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा। आपने एक x का वैल्यू दिया, एक y का वैल्यू दिया, ठीक है। मैप आपके पास है, देन यू कैन गिव टू आइटरेबल वैल्यू एट अ सेम टाइम इन द मैप आल्सो। इट्स वेरी वेरी इजी बाय द हेल्प ऑफ मैप। यू विल गेट योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव इंडेक्स। अगर मुझे मैप पे वर्क करना नहीं आता तो मैं अगर इसे डिफाइनिंग फंक्शन से करता तो कैसे करता? एनीवन? आर यू एबल टू कनेक्ट विद मी? यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, पर्पस समझ में आ रहा है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस एडवांस पाइथन इज दैट क्या जो अभी तक हमने डिफाइनिंग फंक्शन किया, फॉर लूप किया, ठीक है, फॉर लूप को डिफाइनिंग फंक्शन से हेल्प मिलता है। और फॉर लूप जब डिफाइनिंग फंक्शन आपको आ जाएगा, डेफिनेटली देयर इज सम एडवांस मेथड मैप फिल्टर रिड्यूस, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने कोडिंग को रिड्यूस कर सकते हो। बट उससे पहले आपको लूप्स एंड डिफाइनिंग फंक्शन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। जब ये आ जाएगा देन ऐसा मत करना कि डिफाइनिंग फंक्शन का प्रैक्टिस नहीं किया और सिंपली मैप पे आ गए, क्योंकि ये शॉर्टकट जो कोडिंग है विच इज नोन एज एडवांस पाइथन, इसका लिमिटेशन बहुत जगह है, यानी आप हर जगह इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा फ्रेम पे वर्क करना है, आपको डिफाइनिंग फंक्शन और लूप्स से ही हेल्प लेना पड़ेगा। बट छोटे छोटे कोड हैं उनको आप मैप फिल्टर रिड्यूस से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन बहुत है, कंप्लीटली डिपेंड मत हो जाना मैप फिल्टर रिड्यूस में कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें करना ही नहीं है कुछ भी। फॉर लूप के बारे में नहीं सोचना, आइटरेशंस के बारे में नहीं सोचना, पेंड नहीं कराना, कुछ स्टोर नहीं करना। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट अगेन फर्स्टली यू हैव टू बिल्ड योर डिफाइनिंग फंक्शंस लॉजिक, देन आपको लगे ओके इट्स गुड, नाउ यू कम टू द मैप पार्ट फिल्टर रिड्यूस, तब उसका प्रैक्टिस करो। सेम टाइम अभी हमने देखा जैसे वन लाइन कोड, अगर मुझे ये डिफाइनिंग फंक्शन से करना होता तो मैं कैसे करता? यस, कैसे करता? एनीवन? अब वो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। Am I audible? यस, तो कैसे करूं इसे? अगर डिफाइनिंग फंक्शन से करना है मुझे, मुझे मैप नहीं आता, मुझे लैम्डा भी नहीं आता, मुझे डिफाइनिंग फंक्शन आता है सिर्फ, विच इज अ कोर पार्ट, ठीक है, बेसिक बेस पार्ट। तो मैं कैसे करूं इसे?
there are lots of ways, really very simple. क्या हुआ? बहुत इजी है ये तो. लॉजिक दो. अक्षिता, अंशिता, ओके. अंशिता, ओके. No, there is a problem, Anshita. You have to think about it. Because problem क्या है? आपने अगर for I in n किया, logic is right, but there is a problem in the coding. जो क्या करेगा? आपको error देगा. Error क्या देगा? क्या वहां पे देखो प्रॉब्लम क्या होगा. आपने जो आइट्रेशन कराया है वो किसकी आइट्रेशन कराना पड़ेगा, वो लॉजिक सोचो. वहां पे n आइट्रेशन करा दोगे तो वो वैल्यूज को लेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लेस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर भी दे देगा एक बार वो. वहां पे लॉजिक इज गुड बट प्रॉब्लम विद कोडिंग. गुड अंशिता, करेक्ट करो उसे कोड को. लॉजिक इज एब्सोल्युटली राइट बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोड पे. यस, अक्षिता, मुस्कान, पूजिता, रितिका, स्वाधीन. जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे. अच्छा लॉजिक बताओ. चलो, नो नीड टू जस्ट वरी अबाउट द थिंग्स. कोडिंग पार्ट गलत बताओ, कोई बात नहीं. क्या करना पड़ेगा? Am I audible? अरे यस नो तो बोलो. Am I audible? Yes or no? Yes, sir. You're Yes, audible. sir. क्या करूं फिर? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या डिफाइनिंग फंक्शन या लूप? समझ में नहीं आ रहे. यस अक्षिता. Yes, sir. सर सबसे पहले एक फंक्शन नहीं, पहले डिफाइन. मेरा क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. डिफाइनिंग फंक्शन लूप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है. ठीक है बेटा. अंशिता. यस सर आ रहा है. मुस्कान. अच्छा मुस्कान, आपने डिफाइनिंग फंक्शन का मिस किया है, पता नहीं आपने रिकॉर्डिंग देखा नहीं देखा. अ, ठीक है कोई नहीं. चलो पूजिता, व्हाट्स योर व्यू? यस सर आ रहा है. रितिका. सर आ रहा है. ओके. स्वाधीन. सर डिफाइन फंक्शन मैंने लास्ट क्लास मिस किया था. मैं अभी वेरी गुड. इसीलिए सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक है गुड. ठीक है, जिसने किया मे भी. मुस्कान, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना. ठीक है, स्वाधीन एंड मुस्कान बोथ ऑफ यू. ठीक है, और फिर वहां से कनेक्ट करना. अगर नहीं कर पाओ तो फिर मेरे से डाउट पूछना. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे जहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं आज ही अभी क्लास में दिखा रहा था. वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा. ठीक है, आप कनेक्ट कर पाओगे वहाँ पे, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. मेरा स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस सर आपका. ठीक है, देखो यहाँ पे हम डेटा फीचर इंजीनियरिंग पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको फीचर इंजीनियरिंग पे वर्क करना है, हर जगह मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करना है. ठीक है, ये देखो, आई शो यू दिस डिफाइनिंग फंक्शन. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डिफाइंड फंक्शन और उसके हेल्प से फिर ये पूरा लूप क्रिएट होगा. ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसा कोई भी स्क्रिप्टिक फंक्शन नहीं है जिसे आप यूज कर सकते हो. एसक्यूएनएस, देयर इज नो फंक्शन इन द पाइथन. यू हैव टू जस्ट कॉल इट. यू हैव टू make your own function by the help of mathematical formula. There is a mean minus mode divided by standard deviation.
अगेन देखो दूसरा दिखा देता हूँ, अगर आपको आउटलायर ट्रीट करना है देन अगेन यू हैव टू जस्ट मेक योर ओन फंक्शंस. There's a skewness and then you can understand there's a quartile function. So this is a whole loop. So you have to create again own function basis on the quartile Q3 plus 1.5 IQR and Q1 minus 1.5 IQR. आप जब तक इसे रिटर्न नहीं कर पाओगे तब तक इसकी वैल्यूज स्टोर नहीं होंगी तो फिर आप हर एक फीचर पे आउटलायर ट्रीट नहीं कर पाओगे. हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी, डेफिनेटली कर पाओगे. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 20 फीचर्स है तो हर एक फीचर्स का बार बार एक 20 टाइम्स आपको कोड लिखना पड़ेगा. हर एक फीचर का नेम दो और लिखो, नेम दो और लिखो. बट लूप्स अगर आपको आता है, डिफाइनिंग फंक्शन आता है, तो विद अ सिंपल ये जो कोड लिखा है, अब आपके डेटा में 100 फीचर्स भी हो या 10 फीचर्स भी हो, इट डजंट मैटर. विद अ सिंगल दिस सेल or I can say this cell, you can just treat all the outliers. That's a beauty. आपको करना ही पड़ेगा, there is no option. आगे भी जाओगे then again there is a sigma outlier, you have to find sigma. कोई scripting outliers नहीं है, there is no function in the Python where you just call it sigma outliers or these kind of things. You have to define your own functions. ठीक है, तो अगर advanced data science में जाओगे, you have to just build as a advanced data scientist, then you have to build your own functions. There is no, I can say, option in front of you. तो इसीलिए ठीक है, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट, थोड़ा सा सीरियसली ले लो. और इट्स वेरी इजी. अगर डाउट है तो मैं बताऊंगा आपको, डाउट जो भी आपको डाउट है तो मैं बताऊंगा. There's a num1 num3 for I in range. Good. Great, good Akshita, good, very good, very good. But there is no need to, yes, just no need to define these. You can say C, ठीक है, but good. क्योंकि अगर आपने C define कर दिया तो again there is a problem which is related to this one. Logic is good, great Akshita, good. ठीक है, तो इसलिए ये डिफाइनिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, क्या करूं इसे, कोई लॉजिक बताओ. और अक्षिता ने मुझे आंसर दे दिया. और कोई लॉजिक कि मैं इसे अक्षिता एक और एक सिंपल, अगर लेट सपोज मुझे ये भी नहीं पता कि वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज इंडेक्सेस पे मैच कर रही है नहीं कर रही, कि मैं किसी और वे से कर सकता हूँ क्या. लेट सपोज मैंने कहा ओके, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया def एंड मे बी tyre, लेट सपोज, एंड आपने कहा ओके देयर इज अ a, देयर इज अ b, एंड आपने कहा ओके क्या करो फॉर i in there is a zip function also. zip is very very important. ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिंपल सेम टाइम पे आप आइट्रेशन कर सकते हो दो डायनामिक वेरिएबल्स का. यानी मैंने कहा मुझे एक सेम टाइम पे एक i a पे जाए और एक j b पे जाए, और मुझे क्या करना है i प्लस j करना है, सिंपल. ठीक है, यानी वो वैल्यूज को क्या करता, सिंपल स्टोर करता रहे. मैंने कहा ओके सिंपल स्टोर करो, किसे स्टोर करो, जैसा लिस्ट को. और मैंने कहा क्या, सिंपल सी डॉट अपेंड करो, किसे, i प्लस जे को. ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा है. तो आप क्या कर पाओगे, सिंपली अपेंड कर पाओगे i प्लस जे को, किसमें, c में अपेंड कर पाओगे. यानी जो भी आपकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी उसको आप अपेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ i प्लस जे. सिंपल, आपके पास वो i को लेगा. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, वेट, प्रिंट i कॉमा j, सिंपल. ए बी की से हम नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं. ठीक है, इट्स नंबर्स 1 एंड नंबर्स 2, सिंपल. ठीक है, 1 4 2 5 3 6 रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई आई एन जे का. सिंपली उसे मुझे क्या करना है, अपेंड करना है. ठीक है, और जब अपेंड करोगे i प्लस जे यानी 1 प्लस 4 5,
2 plus 5 7, then 3 plus 6 9. Got it? समझ में आ रहा है? It's simple. ठीक है, सो इज वेरी वेरी सिंपल अगेन. ठीक है, तो आपके ऊपर है वो आप क्या लॉजिक यूज करना चाहते हो और क्या लॉजिक यूज नहीं करना चाहते. ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन डू इट दीज थिंग्स. क्या आपने कहा ठीक है i प्लस j करो एंड देन यू जस्ट रिटर्न दीज थिंग्स. आपने कहा कैसे क्या करो, रिटर्न करो. किसे रिटर्न करो? c को. आपने c को रिटर्न कराया. सिंपल. Yeah. Showing that error. आपने ऐसे कॉल किया तो आया and then numbers 1 and numbers 2. Simple, you will get your answer. ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो and then in another way you can do it also. Let's suppose अगर ये third list होता, ठीक है, there's another list also number 3. Maybe you can call it numbers 3 and there's some values 1 3 4. ठीक है, there's some value. So then you have to do, क्या 3 पे भी वर्क किया जा सकता है? हाँ, ijk and there is no need to give that numbers 1 numbers 2. ठीक है, तो इसे कुछ अलग आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो क्योंकि ये हम यूनिवर्सल बना सकते हैं. इट्स ABC. ठीक है, तो यहाँ पे दे दो ओके, यू हैव टू गिव ABC. सिंपल कॉल ijk ABC एंड देन यू जस्ट सिंपली कॉल इट. क्या मैंने जिपिंग किया उसके संग एंड देन सिंपली कॉल इट नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर्स 3. simple calling. So we need to append I plus j plus k. Oh, sorry. So there's a problem. It's a number 1, number 2, number 3. Where? Sir, in number 3, you have to define, sir. No. There is not a problem with this one. Try to show that error. Oh, sorry. It's my. You have to call D. That's वो empty list है ना, उसे दोबारा वो empty list पे है. Yes, sir. Yes, sir. 6 and 30. Got it? So इस तरह से आप वर्क कर सकते हो in different way. But मैप आपको आता है डेफिनेटली. सेम वर्क आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जेड को क्रिएट करो एंड देन x प्लस वाई देन प्लस जेड एंड देन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3. विल गेट योर रिजल्ट. ठीक है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मैप. तो अगर यही मुझे वर्क करना है तो आई हैव टू राइट दीज 3 4 5 लाइन ऑफ कोड. बट मैप के हेल्प से मैं ये कर सकता हूँ. दिस इज द एडवांस पाइथन. गॉट इट? समझ में आया एवरीवन कैसे वर्क हो रहा है? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? मुस्कान कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा. सर मेरे को एक चीज पूछनी है. मैप हाँ. 2 आर्गुमेंट थे ना, तो सॉरी. एक मैप जो फंक्शन था हमारा 2 आर्गुमेंट्स थे, राइट? हाँ. इसको जो लैम्डा वाला हमने आर्गुमेंट दिया है, ये इसको हम एज अ 1 आर्गुमेंट कंसीडर करेंगे या फिर 2? ये दिस इज 1 आर्गुमेंट. ये जो एक्चुअली मैं बता देता हूँ.
This is my map function. First is function, defined function. In whatever the logic you have given. Second is iterable. So defined function, this one, and this one is all about my iterable. क्योंकि नंबर 1 लिस्ट है आइटरेबल, नंबर 2 भी आइटरेबल है, नंबर 3 भी आइटरेबल है, और ये मेरे पास एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, यानी एक डिफाइंड फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है. तो ये पूरा मेरा 1 आर्गुमेंट हुआ और ये मेरा पूरा सेकंड आर्गुमेंट हुआ. गॉट इट? यस. ठीक है. सिमिलरली देयर लॉट्स ऑफ एग्जांपल आल्सो कि मेरे पास कुछ अल्फ्रेड, टैबिथा, विलियम्स, अर्ला. ठीक है. अगर मुझे इसके लिए क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा. सिंपल, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, इसे रिजल्ट को स्टोर कराया अपर केस के लिए, और मेरे पास रिजल्ट है, मेरे पास अल्फ्रेड, टैबिथा, विलियम एंड अर्ला आल्सो. Can I do it by the help of lambda function? Yes, there is a upper function in the Python. जो भी मैं वैल्यू दूं, अल्फ्रेड दूं, अपर कर दे, टैबिथा दूं, अपर कर दे, विलियम दूं, अपर कर दे, अर्ला दूं, अपर कर दे. सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ दिस आपको आपका आंसर मिल गया. ठीक है. तो सिंपल, आप जो यूज कर रहे हो उसी का वो पार्ट है, उसको यूज कर देगा. सिमिलरली मेरे पास कुछ माय स्ट्रिंग है, माय नंबर है. ठीक है. तो मैंने कहा कि मेरे नंबर और स्ट्रिंग के एक टपल क्रिएट हो जाए, यानी A1, B2, C3, D4 एंड E5. इस तरह से माय स्ट्रिंग, माय नंबर्स मेरे आइटरेबल्स हैं, एंड मैंने लॉजिक लिखा कि मैं जो भी X एंड Y दूं उसका एक टपल क्रिएट करके मुझे दे दो. सिंपल, उसने मुझे टपल क्रिएट करके दे दिया, A1, B2, C3, D4, E5. गॉट इट? सिंपल वे. ठीक है. तो अब तक हमने देखा कि मैप क्या कर रहा था, यानी जो भी हम लॉजिक देते उसके अकॉर्डिंग मैपिंग कर रहा था. अगर मैं इफ कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है, और इफ कंडीशन के संग मैंने एल्स कंडीशन नहीं दिया है, तो वो बाकी सारी वैल्यूज को नन नन क्रिएट कर रहा था. अब मुझे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है. कैसे कर सकता हूँ? बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर. फिल्टर क्या करेगा? फिल्टरिंग करेगा. किसको फिल्टरिंग करेगा? रेजिडुअल्स को. यानी मेरे पास यहाँ पे एक लॉजिक है, दिस इज माय लॉजिक. यहाँ पे आपने इनपुट दिया, लॉजिक के अकॉर्डिंग वो आपको आपका आंसर देगा, और रेजिडुअल आपके फिल्टर में ही रह जाएंगे. सॉरी, जैसे आप फिल्टर करते हो ना किसी भी चीज को, वाटर को फिल्टर करना है तो क्या करते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर कंटेन कर लेता है, बाकी सब आपको आउटपुट दे देता है. सिमिलरली ये फिल्टर भी इसी तरह करेगा. आर्ग्यूमेंट सेम है फिल्टर और मैप के. देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट व्हेन यू आर जस्ट कॉलिंग द फिल्टर एंड द मैप फंक्शंस. देयर इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड आइटरेबल. So let's see how to work on the filter also. So there is a first 66, 99 these particular scores. मुझे चेक करने कौन से स्कोर मेरे ग्रेटर देन 75 हैं. ठीक है. तो मैंने एक फंक्शन लिखा, स्कोर रिटर्न ग्रेटर देन 75. क्या करो? ग्रेटर देन 75 स्कोर को रिटर्न कर दो. मैं यहाँ पे मैप यूज कर रहा हूँ. फर्स्टली मैंने कहा सिंपल क्या करो, मेरे इसको रिटर्न कर दो. अब देखो जो रिटर्न कर रहा हूं वो क्या है, देयर इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. लेट्स सी आंसर देखते हैं. मैंने कहा स्कोर, दिस इज माय डिफाइनिंग फंक्शन, जो भी मैं स्कोर दूं उसको रिटर्न करो ग्रेटर देन 75 स्कोर. मैंने मैप किया एंड देन माय आंसर इज द फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. रीजन इज बिहाइंड दैट, क्योंकि वो रिटर्न क्या कर रहा है, स्कोर ग्रेटर देन 75. ठीक है. यानी मैप वर्क कर रहा है जो मेरा लॉजिक था. बट लेट्स सी यहाँ पे मैंने फिल्टर यूज किया, यानी मुझे तो वो वैल्यूज चाहिए थी जो ग्रेटर देन 75 है. मैंने कहा मुझे वो वैल्यूज चाहिए, मुझे ये ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं चाहिए. देन यू विल गेट योर आंसर. मीन्स दैट फिल्टर ने क्या किया, फिल्टर के लिए फॉल्स जो है वो क्या है, इम्प्योरिटी है, और ट्रू इज एग्जैक्ट वैल्यू. तो जो आपने लॉजिक दिया, जो भी ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू था वो उसने उसे रिटर्न किया फिल्टर को. जैसे अब आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास इफ कंडीशन है तो देयर इज अ एल्स कंडीशन, यानी अगर इफ ट्रू नहीं हुआ तो यानी वो वैल्यू फॉल्स हुआ, और फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा, बाकी सबको ट्रू करके रिटर्न कर देगा वैल्यूज. तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ माय फिल्टर फंक्शन. मैप आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैपिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देता है. फिल्टर आपको ट्रू वैल्यूज की एग्जैक्ट वैल्यूज देता है. व्हाटएवर, इफ यू लेट सपोज वी आर यूजिंग फिल्टर, definitely you are using comparison operator in your defining function, but filter will return the values, not true or false, returning the values respective to true boolean.
ठीक है, तो अगर इवन ऑड भी है आपके पास, ठीक है, दिस इज माय डिफाइनिंग फंक्शन इवन ऑड, simple, I just simple call it and 2468 this one. And let's suppose अगर आपने यहाँ पे filter map रखा, there is no condition which is associated else and return true कर रहा है, तो यानी वो उसके पास आपके आंसर दे रहा है true false में, तो none true none true none true, क्योंकि there is no else condition. तो that's the beauty of the filter is that कि आप इस तरह से filter की values को contain कर सकते हो और उसे output में store भी कर सकते हो. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने ऊपर भी देखा होगा और फिल्टर पे भी देखा कि मुझे यहाँ पे ना लिस्ट लिख रहा हूँ. लेट्स सी, मैंने इसे लिस्ट नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लिस्ट नहीं, मैंने सीधे फिल्टर यूज करूँ तो फिल्टर को यूज करते हैं. देयर इज नो नीड टू जस्ट कॉल लिस्ट. तो ये क्या कर रहे हैं, फिल्टर एट 0256, ये देख रहे हो ना, दिस वन. ये क्या शो कर रहा है मुझे, ये एक क्लास शो कर रहा है. यानी आगे हम जब जाएंगे, जब oops पढ़ेंगे, ठीक है, then we will start to understand कि what is the class and under the class what are the variables, what are the objects, we will see later. तो ये फिल्टर क्या है, क्लास है जिसकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है 0 × 256. दिस इज द रेफरेंस आईडी जो मेरे फिल्टर क्लास के अंदर है. तो यानी अगर मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो आई हैव टू यूज माय डेटा स्ट्रक्चर. सो सिंपल इज कॉलिंग लिस्ट, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट में आ जाए मेरे पास, then you will get your answer. That's a similarly with the map also. With the map and the filter, both are same in terms of getting the output. There's nothing difference if you are using the map, if you are using the filter, but the difference in the logic is that if you are using filter, then you will get the values, those values which are true. But in the map, there is no such thing which is related. Let's suppose whatever the logic you have given under the defining function, and you are giving any iterable, you will get the answer with respect to the true condition, and rest of the part will be in the form of none. Got it? So similarly, there's some demigod, there's some stranges. But let's suppose I'm using that logic lambda a exactly equals to a colon minus 1. What is the meaning of this logic? क्या है ये logic? And there is a variable name is palindromes. किसी को पता है what is the meaning of palindromes? Yes sir. Yes. स्टार्टिंग से उसको स्पेल करो, बैक से स्पेल करो तो उससे. ग्रेट. तो ये लॉजिक का मतलब क्या है? What's the logic? What's the meaning of this logic? ये क्या करेगा ये लॉजिक? Anyone? कोई बताओ मुझे, ये लॉजिक में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यानी मुझे अगर डिफाइनिंग फंक्शन करना क्या है, आई कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन. एंड जब इफ आई नो हाउ टू वर्क ऑन द लैम्डा, देन आई सिंपली राइट इन अ वन लाइन कोड, नो नीड टू राइट 2 or 3 लाइन ऑफ कोड. बट ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिक क्या करेगा? सही, ए को पीछे से चेक कर रहा है, ए और पीछे से भी, जैसे डेमीगॉड हो गया तो डी एंड डी को चेक करेगा, ऐसे करके दोनों को इक्वल करने की, ऐसे करके चेक कर रहा है ये पैलिंड्रोम्स करने के लिए. अगर लेट्स सपोज किसने आंसर दिया मुझे? सर रितिका. ओके, रितिका, योर नेम मे बी, सॉरी फॉर योर स्पेल, आई थिंक इज इट करेक्ट? यस. तो ये आपकी जो नेम अगर मैंने दिया तो ये मुझे किस तरह मुझे आउटपुट देगा इस नेम का? सो ये करेगा R इज इक्वल, ये चेक करेगा R इज इक्वल टू A और नॉट. तो अगर नहीं होगा, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. नहीं, एनीवन? और कोई लॉजिक? ठीक है, नो इशू, जस्ट थिंक अबाउट इट. वो कुछ कर रहा है, देखो वहां पे देखो, इट्स वेरी वेरी सिंपल. अगेन यस अंशिता. सर इसमें हम ए लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, फिर उसमें वो उसका रिवर्स ऑर्डर क्रिएट कर देगा, एंड देन इट विल चेक कि उसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी लास्ट लेटर के इक्वल. वेट, योर नेम इज अंशिता, इज इट करेक्ट योर स्पेल? यस.
ओके तो ये क्या चेक करेगा, मैंने जब लॉजिक दिया तो इस अंशिता का क्या कर देगा ये? Okay, so A is equals to A. First it will check A if A is equals to A or not. ओके First letter equals to last letter, which is yes. नो नो एनीवन? सर ये पूरे वर्ड को चेक करेगा, Great. डेमिगॉड को कंपेयर करेगा उसके रिवर्स से, ग्रेट, चेक कि अगर वो दोनों इक्वल है तो that वो is it. यानी मीन्स दैट देयर इज अ नेम डेमिगॉड, ठीक है, और अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूं यानी DOGIMED कि ये दोनों इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल या नहीं है, ये क्या करेगा, ये भूल गए इनिशियल एंड द फाइनल, ये -1 यानी ये पूरे नेम को रिवर्स लिखेगा इस तरीके से, और फिर उसे चेक कर रहा है कि ये जो मैं स्पेल कर रहा हूँ डेमिगॉड which is exactly equals to in reverse order also or not, means that this string is palindrome or not. Palindrome means आप उसे आगे से लिखो या पीछे से रिवर्स करके लिखो, both are same, यानी उसकी स्पेल में कोई भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो ये चेक करे कि इनमें से कौन से ऐसे नेम्स हैं जो पैलिंड्रोम्स हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है ना। तो इस मैडम यू आर जस्ट राइटिंग MADAM, गॉट इट? समझ में आ रहा है? इट्स सिंपल। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, मैंने ये सही ये इनपुट दिया, दिस इज माय इनपुट ऑफ लैम्डा, एंड रिटर्न क्या कर रहा हूँ, किसे एग्जैक्टली इक्वल्स टू A, यानी ये दिया मैंने और इसका रिवर्स ऑर्डर -1, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट मैंने दिया नहीं, -1 मींस उसका रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। डेमिगॉड का रिवर्स ऑर्डर इज DOGIMED, इट्स सिंपल। मैं उन्हें चेक कर रहा हूँ और मैं उन्हें फिल्टर आउट कर रहा हूँ जो मेरे पैलिंड्रोम्स है इस पर्टिकुलर ड्रॉम्स में, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने कहा दिस आर माय नेम्स, दिस इज माय पैलिंड्रोम्स, आपके पास मैडम एंड अनफोरा जोरम आपके पास नेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके पैलिंड्रोम्स, अब देखो यहाँ पे क्या था, आई डोंट थिंक सो क्या इसमें कोई टफ पार्ट था, टफ पार्ट मीन्स देयर इज अ बेसिक पार्ट, तो बेसिक पार्ट सिंपली क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स कर रहे हैं, सिंपल। तो वो बेसिक पार्ट जब कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे। नो नीड टू जस्ट वरी अबाउट द थिंग्स, क्या हमें शायद कोडिंग आ नहीं रहा, या मे बी सम ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है, तो नो नीड टू वरी, नो नीड टू डीमोरलाइज, बट हाँ नीड टू प्रैक्टिस, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस मुस्कान? सर माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट, लाइक मेरा क्वेश्चन ऊपर था, बट मैं पूछ रही हूँ कि अगर मान लो हमने जो दो लिस्ट की थी और उन्हें मैप किया था, अगर इन केस दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो मतलब आई गेस साइज जो लेंथ है वो अलग अलग हुई तो क्या होगा? तो एरर देगा, हाँ एरर देगा आपको। एरर देगा? सर वो ऐसे नहीं रुक जाएगा, लाइक अगर ऊपर वाली लिस्ट में 5 एलिमेंट्स है और नीचे वाली लिस्ट में 7 एलिमेंट्स है तो वो लास्ट के 2 एलिमेंट्स नहीं उठाए। रीजन इज बिहाइंड दैट, तो डेफिनेटली फिर आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ कंडीशन मींस दैट लेट्स सपोज इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और ये कब तक लूप रन करता रहे, जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि रीजन इज बिहाइंड दैट, लेट एक में 3 है, एक में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास 3 to 3 का आप एडिशन कर सकते हो, ये एलिमेंट का एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इस पे है ही नहीं, वो आई को वो डिफाइन करेगा ही नहीं, जब 4th आइट्रेशन के लिए जाएगा, तो जब ये एडिशन ही नहीं होगा तो फिर वो अपेंड नहीं कर पाएगा। तो आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा विच इज रिस्पेक्टेड टू योर स्मॉलर लिस्ट, कि जब तक ये आइट्रेशन तब तक करे जब तक इसमें ये वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। तो आपको आइट्रेशन देना पड़ेगा, यानी इफ के अंदर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा विच इज रिस्पेक्टेड टू द लेंथ ऑफ दिस वन। अगर वो लेंथ उसकी छोटी है, वो आइट्रेशन करके जाएगा और फिर उसे काउंटर देना पड़ेगा, चेक करेगा, जब तक वो छोटा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद वो आपका लूप स्टॉप हो जाए। तो आपके पास आप जो चाहो वो कर सकते हो, गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो फिल्टर विद लैम्डा हमें समझ में है कि अब फिल्टर विद लैम्डा हमने वर्क किया फिल्टर मैप में, ठीक है, डिफरेंस समझा, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ लिस्ट, ठीक है, 1 5 4 9 8, आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हो कौन से आपकी इवन वैल्यूज है,
will get your values with respect to this one. ठीक है, तो आपको values मिल जाएगा. And similarly there is some list and x modulo of 2 not equals to 0. तो यहाँ पे आपके पास जो इवन वैल्यूज नहीं है वो आपको मिल जाएंगे आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो सारी वैल्यूज होंगे जो इवन वैल्यूज नहीं है. Now let's see, there is a list, random list, and in the random list there are some values. Here you can see it's very important. Try to understand. 1 A 0 false true, and there is a string part. Got it? So I want to filter that particular list on basis of the defining function which is none. मैंने इसे फिल्टर किया, ठीक है, और मेरे पास आंसर आया 1 A ट्रू एंड 0. इसने 0 और फॉल्स को रिमूव कर दिया. क्यों? सबसे पहले मैंने इसे एक फंक्शन दिया विच इज नन, और जैसे ही मैंने इसे नन दिया तो इसने 1 A 0 फॉल्स ट्रू 0. इसने मुझे आंसर दिया 1 A ट्रू एंड 0 स्ट्रिंग. 0 और फॉल्स को रिमूव कर दिया. क्यों? हाँ, आंसर. आंसर सिंपल, वेरी सिंपल. ये मैंने ऑपरेटर्स में बताया था आपको. Am I audible? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? मैंने एक रैंडम लिस्ट दिया है. मैं रैंडम लिस्ट देयर सम एलिमेंट्स 1 A 0 फॉल्स ट्रू, और मैंने फिल्टर यूज किया. फिल्टर के अंदर मैंने कोई भी फंक्शन नहीं दिया. ठीक है, देयर इज नो फंक्शन. मैंने सिर्फ नन दे दिया, सिंपली पास किया, और मुझे आंसर मिला 1 A ट्रू एंड 0 इज द स्ट्रिंग पार्ट. ऐसा क्यों किया इसने? ग्रेट, गुड मुस्कान, गुड. बाकी सबके सर आंसर चाहिए. हाँ, सर इसमें शायद ये होता है कि 0 इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर कोडिंग के ये उसमें देखे, और 1 इक्वल टू ट्रू होता है, तो 0 है तो मतलब कोई वैल्यू, आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन करवाया था अभी जिसमें उसने फॉल्स तो हटा ही दिया था क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, good. और 0 को भी वो फॉल्स ही लेगा. डेफिनेटली, यानी मैंने जो एक फंक्शन देना चाहिए था वहां पे कोई लॉजिक नहीं दिया. मैंने वहां पे लॉजिक क्या दिया? सिंपल, जो फिल्टर का अपना बिहेवियर है वही फंक्शन आप लॉजिक यूज करो. यानी जो भी मेरे इसमें 0 है या फॉल्स है उनको रिमूव कर दो. 0 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू फॉल्स. ठीक है, हमने ऑपरेटर्स में देखा था ट्रू प्लस ट्रू यानी 1 प्लस 1 एंड फॉल्स इक्वल्स टू 0. सिंपली 0 पाइथन के लिए क्या है? फॉल्स है, इसलिए उसने 0 और फॉल्स दोनों को रिमूव कर दिया. गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? यस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैप एंड द फिल्टर थिंग्स. डिफरेंस समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या डिफरेंस था? हमें 5 लाइन का कोड 2 लाइन 3 लाइन में या 1 लाइन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, so this is the by the help of the lambda function, by the help of the map filter things. ठीक है, तो जो अब आपके ना, अभी मैंने आपके वो असाइनमेंट को चेक नहीं किया है, जस्ट डू वन थिंग मोर. वही असाइनमेंट जो आपके फिल्टर एंड रिड्यूस डिफाइनिंग फंक्शन के लूप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपना अपना क्या करना, मैप से करके देखना, मैप फिल्टर से करके देखना, एंड देन अगेन री सबमिट योर असाइनमेंट. ठीक है, विच इज
योर बोनस काइंड ऑफ थिंग। तो आपको समझ में आएगा ओके दीस आर द क्वेश्चन यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ मैप एंड द फिल्टर आल्सो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए आपके पास मैप फिल्टर के कोई भी आंसर नहीं होगा, आपको बेसिक कोर लूप उसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप फिर वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो ओके दीस आर द सम क्वेश्चन यू कैन जस्ट सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ मैप फिल्टर थिंग्स एंड दीस आर सम क्वेश्चन देयर इज नो ऑप्शन, यू जस्ट गो फॉर द basic part or the core loop part. So this is the map filter, and now come to the part which is the reduce one. So same reduce function and iterable, यानी मुझे इसमें फंक्शन देना है एंड आइटरेबल। अब रिड्यूस करता क्या है वो देखते हैं। सो लेट सपोज आपने कहा 1 2 3 4 एंड 5। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैप एंड फिल्टर से वैल्यूज को 6 है इसको फैच आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा मुझे सम चाहिए, सम मीन्स दैट जो रिटर्निंग वैल्यूज यानी इसका पूरा सम, ठीक है। मुझे सम चाहिए इस पूरा लिस्ट का। क्या मैप फिल्टर रिड्यूस से आप कर सकते हो? डेफिनेटली नो, आपका प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वहां पे क्या करना है, आपको स्टोरिंग करना है वैल्यूज को, और वो वैल्यूज स्टोर करने के बाद उसमें अपेंड करना पड़ेगा। तो मैप फिल्टर में तो हम फिल्टर कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग या वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूस आई कैन सिंपली गेट माई टोटल सम ऑफ माई लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो ये इसका लॉजिक बता देता हूँ ये किस तरह वर्क करेगा। सो देयर सम वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस वन, ये 2 वैल्यूज, देन आपके पास जो आंसर आएगा दिस वन कनेक्ट, जो भी आंसर आएगा इससे ऐसे करके और रिड्यूस करेगा एंड यू विल गेट योर आंसर। यानी आपकी लिस्ट को रिड्यूस करता जाएगा और आपको आपका आंसर मिलेगा। तो लेट्स सी, मेरे पास मेरी वैल्यूज हैं फ्रॉम, बट इसके लिए आपको ये कॉल करना पड़ेगा बिकॉज रिड्यूस इज नॉट जस्ट काइंड ऑफ क्लास which is not defined under the Python as a class, so you have to call another library functool import reduce। तो आपको एक functool लाइब्रेरी है उसके अंदर ये क्लास है, ठीक है। Python के itself क्लास नहीं है ये। तो functool import reduce आपको कॉल करना पड़ेगा। आपने कहा मेरे पास 2 वैल्यूज हैं a and b, a plus b and result a plus b, ठीक है। सिंपल, आपने इसे कॉल किया और फंक्शन को फंक्शन उसे दिया, बस लॉजिक दिया आपने, आइटरेटर नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे आपने उसे लॉजिक दिया है। फ्रॉम functool import reduce आपने उसे लॉजिक दिया, रिजल्ट सिंपल, एंड देन देयर इज अ लिस्ट, you have to call my reduce my add numbers and you will get your answer। it's simple। यानी सबसे पहले क्या किया इसने, 0 a and b, 0 plus 1 1 plus this one फिर this and this one, ये रहा इसका लॉजिक, ठीक है। तो यानी आप क्या कर सकते हो, टोटल सम भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सिंपल वन थिंग। अगर मुझे यही किससे करना होता, सिंपल डिफाइनिंग फंक्शन से करना होता तो मैं कैसे करता, लॉजिक बताओ इसका। अगर मुझे टोटल सम चाहिए डिफाइनिंग फंक्शन से पूरे लिस्ट का, तो मैं कैसे करूंगा इसे, एनीवन? मुझे नहीं पता मैं कैसे रिड्यूस पे वर्क करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या रिड्यूस पे कैसे वर्क करना है। I want to get the same output by the help of defining function. How may I do it? Yes. Sir, why can't we do this using filter or map? Just do it by the help of filter and map. Sorry. You can do it if you can do. क्योंकि रीजन इज बिहाइंड दैट, अगर आप फिल्टर से कर रहे हो, अगर आपको इस डिफाइन, अच्छा लेट्स सी, वेट अभी मैं आंसर देता हूँ, पहले ये पता करते हैं कि इसके पीछे अगर मुझे सेम वर्क यही करना है बाय द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन, हाउ मे आई डू इट। अगर आप इसका आंसर दोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैप फिल्टर से क्यों नहीं कर सकते। लेट्स सी, यस एनीवन? कैसे करोगे? सर, इसके अंदर हम 3 वेरिएबल बना सकते हैं। ओके वेट, यस मैं, हाँ क्या लिखूं, पहला लाइन मुझे कोडिंग बता दो, सिंपल कोडिंग बताओ पहले। लॉजिक। अच्छा लॉजिक बताओ, चलो ठीक है।
सर हम आइटरेट करेंगे इस लिस्ट को, नंबर्स वाली लिस्ट को। ठीक है, मैंने नंबर वाली लिस्ट को आइटरेट किया फॉर आई, लेट्स सपोज ए, ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। मतलब मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हम 0 डाल देंगे, सेकंड में 1 डाल देंगे, और थर्ड में इन दोनों का सम डाल देंगे। फिर हम लोग फर्स्ट की वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स कर देंगे, और सेकंड की वैल्यू उसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स कर देंगे। और ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेट्स सपोज अगर मेरे पास और भी लिस्ट होता तो वो ठीक है, लॉजिक इज गुड, बट द थिंग इज दैट अब इसे कोडिंग पर्सपेक्टिव से डिफाइनिंग फंक्शन में सोचो कैसे करना पड़ेगा। डिफाइनिंग फंक्शन में यानी अगर रिड्यूस आपके पास फंक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली आपको खुद का ओन फंक्शन करना पड़ता, ठीक है। तो अगर खुद का ओन फंक्शन डिफाइन करना पड़ता तो कैसे करते इसे? यस, इट्स रियली वेरी वेरी इजी। यस, एनीवन? कैसे करोगे? सर हम इसके अंदर 2 लूप्स बना सकते हैं, आई एंड जे का। आई की वैल्यू हम शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और जे की वैल्यू उसके आगे से एंड तक, और उन दोनों की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा लॉजिक पकड़ा आपने, गुड। और बाकी और सबके लॉजिक सुनने हैं मुझे, और क्या क्या कर सकते हो? सोचो इसे थोड़ा सा, इट्स रियली वेरी वेरी इजी। अभी समझ में आ रहा है ये मुस्कान, क्यों ये मैप फिल्टर रिड्यूस से नहीं हो सकता? वो सॉरी मैप एंड फिल्टर से नहीं हो सकता, उसका लिमिटेशन क्या है? यस सर। सर पता है थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी ना तो और समझ आ जाएगा। गुड, अभी इट्स फॉर करो। फर्स्ट टाइम ना, तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा रहा है। और क्या क्या कर सकते कि इससे जरूरी है मैं नेस्टेड फॉर लूप से ही करूं? क्या मैं कुछ और यूज कर सकता हूँ? सोचो, देखो मैं एक लॉजिक, चलो एक लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा समझो, मुझे भी कोडिंग नहीं आता और आपको भी कोडिंग नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, यानी मुझे क्या करना है? पहले फर्स्ट वैल्यू को आइटरेट करना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वैल्यू को आइटरेट किया, 0 मेरे पास आ गया। अगर मैं इसे स्टोर कर लूं, ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने 0 को स्टोर किया, फिर मैं सेकंड वैल्यू पे जाऊं, इसे इसमें 4 कर दूं, यानी 0 + 1 कर दूं, जो भी इसका आंसर आए वो मेरे पास कंटेनर में कंटेन हो जाए। फिर इस पे जाए, इसको 4 कर लूं, यानी वट एवर आंसर 1 + 2 3, ओके। फिर मैं इस पे जाऊं, इसको भी इस पे 4 कर दूं, यानी 3 + 3, ओके। फिर मैं इस पे जाऊं, इसको 4 कर लूं, 6 + 4, मेरा आंसर 10 आ जाएगा। जो भी आंसर आया लास्ट में मैं उसे रिटर्न कर लूंगा। कुछ याद आ रहा है एनीवन? याद आ रहा है कुछ? कुछ किया था हमने, कुछ इस तरह के लॉजिक क्रिएट किए थे। सर अब I + = I। ओके वेट, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? वेट वेट वेट, यानी अब मुझे ठीक है, मैंने समझ लिया कि लॉजिक तो ये है, यानी मेरे पास 0 + 1, देन 1 plus next value is whatever I can say is this one 2, and then 2 which is 3, 3 + 3 and 6 + 4। ये मेरे पास लॉजिक आ गया। अब मैं क्या लिखूं? तो I = I + I, ये लिखना है क्या? Sir, first we can write for I in numbers. ओके वेट, सॉरी। सो ठीक है, हम क्या लिखते हैं? फॉर I in numbers, ठीक है, एक कर देता हूँ मैं, ठीक है। देन I + = I. I + I, okay. Yes, sir. Is it? So, no, sir. We can. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज एक्सपेंड करो इस काउंटर को। Sir, it will be I + I.
आई में equals i to, प्लस आई की वैल्यू स्टोर होगी। एंड देन आप रिटर्न किस में कर रहे हो, आई में ही रिटर्न कर रहे हो उसका वैल्यू। यस सर। अब इसे थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यस मुस्कान, सर थोड़ा सा, इसके यस प्लीज। हाँ इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम आई को लेंथ ऑफ नंबर्स तक चला सकते हैं और i इज इक्वल्स टू, नहीं, a का i इज इक्वल्स टू a का i प्लस 1, आई मीन a का i प्लस इज इक्वल्स टू a का i प्लस 1। गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, गुड, दैट्स अ परफेक्ट लॉजिक। तो बेसिकली यानी अगर आप क्या करो, क्या किया मुस्कान ने, इनके इंडेक्सेस पे वर्क किया, यानी रेंज ऑफ लेंथ पे गए, तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 2, यानी सबसे पहले इसका वैल्यू लिया, इन दोनों को प्लस किया, नेक्स्ट आइटरेशन में इन दोनों को प्लस किया, नेक्स्ट में इन दोनों को प्लस किया, फिर इसको प्लस किया। जैसे इसको प्लस करोगे आपको वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये तो फॉर लूप की बात हो गई, हमें तो डिफाइनिंग फंक्शन की बात करनी है। तो लॉजिक पता चल गया, अब मुझे डिफाइनिंग फंक्शन में बताओ कि इस वैल्यू को रिटर्न कैसे करोगे। यस, अब रिटर्न कैसे करेंगे, अब मैं क्या परफेक्ट कोड लिखूं जिससे मेरी ये वैल्यू रिटर्न हो जाए 10। यस, क्या लिखूं मैं, फंक्शन बताओ मुझे क्या लिखूं, फंक्शन। लेट्स सपोज हम अपना फंक्शन कोई देते हैं RED, ठीक है, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया एंड माय आर्ग्यूमेंट में बी ए, ठीक है, मेरे पास लिस्ट है। अब मैं क्या करूं उसमें, मैंने एक आर्गुमेंट दिया, ठीक है, देन So it will be for I in range. फॉर आई इन रेंज, ओके। जरूरी नहीं है मुस्कान का कॉन्सेप्ट डिफाइनिंग फंक्शन में भी है, आप अपना यूज करना, ठीक है। हाँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ 0 ऑफ, to length of numbers. ओके, ए कर दूं, ठीक है, ए लिख सकता हूँ या नहीं, Yes sir. Yes sir. ओके, ठीक है, फिर इसके बाद Then like we need to assign a empty list, so we can do it like after numbers we can write it. वेरिएबल ले सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू a का, ओके, वेट वेट, अंडर फंक्शन और आउटसाइड ग्लोबल बनाऊं या लोकल वेरिएबल बनाऊं। So global we can. लोकल नहीं बना सकता, Sir local में फिर it will not be accessed outside the function. गुड रितिका, वेरी गुड रितिका, गुड। अच्छा, लोकल बना सकता हूँ, अच्छा या नहीं, ये पहले इसका आंसर दो मुझे, लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं, या ग्लोबल ही करना पड़ेगा मुझे। लोकल और ग्लोबल पता है ना सबको, एवरीवन, कोई है जिसको नहीं पता व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज ग्लोबल? रितिका ने मुझे आंसर दे दिया। वो पता है आंसर आपको तब आएगा जब आपने ना फंक्शन का एक एक लॉजिक पकड़ रखा होगा, मतलब लॉजिक इन द सेंस कि आपको पता है कि रिटर्न का प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता रिटर्न का, कभी कभी वही प्रॉब्लम आपको एडवांटेज देता है और कभी कभी वही प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम ही देता है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, जो रितिका ने यहाँ पे किया। यस, गुड। और ये मैंने करवाया हुआ है, ऐसा नहीं है ये मैंने नहीं करवाया। तो क्या करें अब, डिफाइन रेड ए कर लिया, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी पूजिता, आप आंसर दे रहे थे ना, कौन दे रहा था मुझे आंसर? सर अक्षता। अक्षिता, यस। अक्षिता, क्या करूँ, लोकल वेरिएबल क्रिएट करूँ या सर ग्लोबल? ग्लोबल। ग्लोबल करूँ, लोकल नहीं Yes, कर sir. सकता? अच्छा, आंसर नहीं क्वेश्चन, क्यों? सर बिकॉज जो आपका लोकल वेरिएबल होगा वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग बाहर नहीं कर सकते। तो अगर मैंने फंक्शन के अंदर कर लिया, मुझे तो फंक्शन के अंदर ही विद इन फंक्शन ही वर्क करना है, मैंने तो लोकल कर लूँ तो। सब बट हम उसको लाइक मैं दोनों यूज कर सकता हूँ, लोकल भी और ग्लोबल भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। रीजन इज बिहाइंड दैट क्योंकि वो आपके फंक्शन का ही पार्ट है, आप उस फंक्शन में ही उसको डिफाइंड कर रहे हो, यानी उस विद इन द फंक्शन आप उसको यूज करने वाले हो। देयर इज नो सच थिंग, ग्लोबल मीन्स दैट कि अगर आपको फंक्शन के बाहर भी उसे यूज करना है कहीं पे तो कर सकते हो, बट ये तो आपके फंक्शन की बाउंड्री के अंदर है, तो आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा नहीं।
तो लेट्स सी आपने कहा कुछ भी, आपने मे बी आई कैन से q इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो मैंने लोकल वेरिएबल असाइन कर दिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं? सर q इज इक्वल्स टू ओके a का i ओके प्लस a का i प्लस 1 ओके। एंड रिटर्न q। अच्छा वेट, अक्षिता सही है, मुस्कान का कॉन्सेप्ट, एंड देन ओके रिटर्न q। यस सर। क्या ये वर्क करेगा अक्षिता? यस सर। वो सर नहीं करेगा, रिटर्न को हमें फॉर के नीचे डालना पड़ेगा। ओके, ये क्यों करना पड़ेगा मुझे मुस्कान? सर जितना मुझे अभी ऊपर से समझ आया है, क्योंकि तो समझ में आ गया, फंक्शन है वो डिफाइन फंक्शन के नीचे है। गुड। अक्षिता प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर एक्चुअली आई वाज फोकसिंग ऑन द लॉजिक, अभी मैं इंडेंटेशन पे मैंने फोकस नहीं किया था। मुस्कान ने अभी कॉन्सेप्ट बताया, रिटर्न मुझे फॉर के नीचे इंडेंटेशन में लाना पड़ेगा, इसका मतलब समझ में आया? यस सर। देखो नो नीड टू हेजिटेट, एनीवन जिसे भी अभी प्रॉब्लम है, अभी आप वो जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं इसके बाद एडवांस पाइथन खत्म हो जाएगा कल हमारा, फिर ऊप्स आ जाएगा। ऊप्स इज वेरी 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 टफ, ठीक है। ऊप्स उनके लिए होता है जो डेवलपमेंट में जाते हैं, यानी पाइथन डेवलपमेंट में जाना है, देन ऊप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डेटा साइंटिस्ट के लिए ऊप्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है अनटिल अनलेस जब तक आप डिप्लॉयमेंट पे नहीं जा रहे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो डेवलपमेंट पार्ट, जहाँ पे आपको पाइपलाइन डिजाइन करना है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, ठीक है। तो जब तक ये डिफाइनिंग फंक्शन नहीं आएंगे तब तक आपको डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट भी नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, दिस इज द रियलिटी। मैं चाहता तो आपको पाइथन शायद बाईपास भी करा सकता था, एक शैलो शैलो पाइथन पढ़ाता और बाईपास करा देता, तो आपको पता भी नहीं चलता। बट दिस इज नॉट माई इंटेंशन। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको पाइथन स्ट्रांगली आए। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है वो सारे IBM और ओरेकल के क्वेश्चन है मोस्टली, तो अगर आप उन्हें नहीं भी कर पा रहे हो तो ऐसा मत समझना कि आपको पाइथन नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन उस लेवल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, और आपको पता है ओरेकल IBM में Tier 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ठीक है, नो नीड टू वरी, बट पाइथन इज वेरी वेरी इजी। अगर आप लॉजिक के संग जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे ना तो दिक्कत होगा। तो रिटर्न क्यू मीन्स दैट डेफिनेटली, यानी वो पूरा आइट्रेशन करेगा, और आइट्रेशन करे यानी क्यू a of 0 प्लस a of 0 प्लस 1, ठीक है। a of 0 प्लस 1 आइट्रेशन हुआ, गया वो उस पे, ठीक है। किस पे गया? मेरे पर्टिकुलर लॉजिक पे। अब इस लॉजिक को समझते हैं कि ये लॉजिक वर्क कैसे कर रहा है। तो क्यू है, ठीक है, a 0 था इनिशियली, i 0 इंडेक्स 0, a 0 प्लस 1 दिस 1, ठीक है। ओके, ये क्या था? मेरे पास वैल्यू दिस 1। अब इस लॉजिक को पहले सोचो कि ये इनिशियली 0 था, क्या आपने इस पे काउंटर क्रिएट किया है या नहीं किया है, पहले ये सोचना, ठीक है। फिर ये इसने क्या किया, अगर आप यहाँ पे जब इसे 0 क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे इसे काउंटर नहीं दे रहे, तो इसका पर्पस क्या है? a ऑफ 0, ठीक है, a ऑफ 0 क्या है मेरा? सिंपल, पहली वैल्यू 0 एंड 1, q 1 हो गया, ठीक है। इस पे गया, वैल्यू दोबारा से गया i, अब i फॉर 1 हो जाएगा, तो a ऑफ 0, a दिस इज 1 प्लस a 2, a ऑफ 1 क्या है मेरा वैल्यू? दिस इज 1 एंड a ऑफ 2 इज 2, ओके, q 3 हो गया। फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन पे गया, i 2 हुआ। अब देखना यहाँ पे i 2 दिस वन एंड a 3, I2 क्या है? There is a value which is related to 0, 1 to 2 and plus 3. This value Q is 5. For next iteration, this one, ठीक है, A of 3, 0, 1, 2, 3, this one, A of 3 and A of 4. A of 3 क्या है? 3. A of 4 is the value, वो क्या है? Which is 4, 7. अब यहां तक तो ठीक था। इसके बाद A of I प्लस a i प्लस 1,
नेक्स्ट इटरेशन कहाँ पे गया, लेंथ ऑफ ए, यानी ये लास्ट विच इज लास्ट इटरेशन, यानी ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। अब ए ऑफ 4 तो आपके पास 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4 तो है, ये 5 कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम समझ में आया? यस, प्रॉब्लम समझ में आया? कहाँ पे Yes. प्रॉब्लम आ रहा है? वो लॉजिक को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा लॉजिक को भी। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मुझे आंसर किसने दिया? अंशिता। ओके, गुड अंशिता, गुड, ठीक है, ग्रेट। यस, बाकी ठीक है। यानी मीन्स दैट आप ऐसे जब भी आप लॉजिक दो ना, तो उसे खुद आप सेग्रीगेट कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। यानी ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जैसे ही मुझे एरर देगा तो मुझे समझ जाना चाहिए कहाँ पे, क्योंकि ये एरर आपको देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब आपको पता होना चाहिए ये कब आता है एरर, यानी लिस्ट में वो इंडेक्स जो है ही नहीं उसके रिगार्डिंग दे रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द एरर। तो अगेन आपको अब उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो कहाँ पे इसे वर्क करना है ये अब समझो, कहाँ पे इसे वर्क करना पड़ेगा, कैसे इसे आइट्रेट करेंगे, क्या करेंगे। चलो लेट्स सी दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, इसे करना, ठीक है, करना जरूर। मैंने लास्ट टाइम भी एक होमवर्क दिया था विच इज रिलेटेड, मुस्कान शायद वो आप ही का क्वेश्चन था, मे बी आई थिंक लूप्स का पार्ट था, मे बी, मैं ध्यान नहीं है मुझे, शायद शूज आप ही वाला ने क्वेश्चन पूछा। था। हाँ, शूज वाला क्वेश्चन था ना आपका, वो हाँ किया था आपने बाद में? सर, उसमें मैंने ना वो करने की कोशिश करी थी कि मैंने ना यूजर से ही पूछा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। मे बी लेट्स सी, मैं आपको शो करता हूँ, पता नहीं वो शायद होगा या कोड या नहीं होगा, ये रहा। मे बी वो आपको रिकॉर्डिंग प्रेफर करना पड़ेगा दिस वन। हम शायद मैंने वो कराया था ना, आप ही की क्लास में कराया था, अंशिता एंड अक्षिता, जिसमें अगर लेट सपोज मेरे पास वो शू मैंने सिलेक्ट किया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो मेरे पास दोबारा से इन्वेंट्री में चला जाए, फिर मैं दोबारा से उसे सिलेक्ट करूं और उससे पूछूं, ठीक है, बट वो यहाँ पे मेरे पास अभी कोड नहीं है। मैंने कराया है, शायद आप ही की क्लास में कराया था। सर एक्चुअली लास्ट क्लास जो है ना सर, डिफाइनिंग फंक्शन में फर्स्ट पार्ट पे है, मींस 20 मिनट्स नो 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 बिफोर में नो, पार्ट में था। डिफाइनिंग फंक्शन में नहीं होगा वो, मे बी डिफाइनिंग फंक्शन में नहीं होगा शायद। वही रिकॉर्डिंग में है सर, मैं सुना था लास्ट क्लास नहीं, हमने मिस लास्ट में किया था नहीं ना होगा, सर। वो स्टार्टिंग में होगा, देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग हाँ देखना, ठीक है, हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग एक्चुअली मैंने क्लास देखो, मिस किया था ना, देखा था मैंने तो रिकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में ही है वो जो आपके क्वेश्चन का शायद को आपका आंसर है, ठीक है, वहां पे आप उसे कर सकते हो उससे इस तरह से, ओके सर। ठीक है, दिस इज योर पार्ट, ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखना, ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन डू इट दिस वे। तो देयर इज अ बैक हैंड कोडिंग आल्सो, ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैप फिल्टर रिड्यूस, ठीक है, ये आपके पार्ट है। नाउ कम टू द पार्ट के एक और एडवांस पैथर्न है जो आपको और ज़्यादा ईज दे देगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा क्या, मैप फिल्टर के थ्रू हम ये वर्क कर रहे थे, उसे बार बार आइट्रेशन कर रहे थे, देयर इज अ लिस्ट कंप्रेंशन आल्सो, मे बी अगर एग्जॉस्ट हो रहा है तो वी कैन डू दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, मे बी अगर आपको एग्जॉस्ट हो रहा है, और इफ आई कंटिन्यू और नॉट, ठीक है, कर सकते हैं आज ही या फिर नेक्स्ट क्लास। यस मुस्कान। सर, इसकी जगह जो आपने हमें जो लूप का जो असाइनमेंट दिया था, हम्म, उसके अंदर ना काफी क्वेश्चंस थे जो ना हमसे नहीं हुए। ओके, कौन से नहीं हुए आपसे? जैसे एक वो कैमल और कैमलिन वाला क्वेश्चन था कि हमें ना हाँ, इसमें ना कैमल था, उसको कैमलिन से रिप्लेस करना था। ओके और ओके उस ओके ओके, लिस्ट के अंदर ना नेस्टेड लिस्ट थी, बट हम्म, हमने एक लिस्ट तो आइटरेट कर दी, बट उसके अंदर की जो लिस्ट है उसे कैसे हम आइटरेट करें? वो सोचना पड़ेगा आपको, वो वो सोचना पड़ेगा। भी नहीं हाँ, हुआ। वो देखो, वो उसके ना दो आंसर्स मैं आपको दूंगा। फर्स्ट आंसर इज दैट जो शायद मे बी अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है लेकिन 7 to 8 लाइन्स में होगा, ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन आई कैन डू मे बी इन 3 लाइन आल्सो, ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, ठीक है। देयर इज अ इन्यूमरेट आल्सो, इन्यूमरेट से मैं आई कैन डू द सेम इन 3 लाइन्स,
और अगर आप कोर पार्ट पे करोगे तो यू हैव टू टेक 7 to 8 लाइंस. इट्स वेरी, अगेन वो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू थिंक क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेस्टेड लूप में वर्क करना पड़ेगा. नेस्टेड लूप मीन्स दैट जो एक लूप मेरे 0 और 1, क्योंकि जब आपके पास नेस्टेड पार्ट होता है ना, तो जैसे ए है, ठीक है, इसके 1 2 3, मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं आपको. तो मुझे क्या करना है, पहले इस पार्ट को लिस्ट को आइटरेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक लूप चाहिए. फिर इसके अंदर की वैल्यूज को आइटरेट करना है, तो मुझे उसके लिए एक लूप चाहिए. तो फिर अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास फॉर आई इन ए में गया, तो ये पहले इस लिस्ट को लेगा, फिर फॉर जे इन आई इस लिस्ट को लेगा. समझ रहे हो? फॉर आई इन ए का 0 इंडेक्स का ये लिस्ट आया, फॉर जे इन आई इस लिस्ट को लेगा. अब मुझे इस लिस्ट पे वर्क करने की, यहाँ पे जिस भी इंडेक्स पे कैमल आए, यानी जिस भी इंडेक्स पे कैमल आए उसे कैमलिन से रिप्लेस कर दे. तो यू हैव टू थिंक कैसे करना पड़ेगा. ऐसे लॉजिक मैंने बता दिया है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें. यानी इसके बाद आपको आइटरेशन करना है कि जब भी जे इन आई के बाद आपको बस 2 लाइन का कोड और लिखना है कि जब भी वो इंडेक्स कैमल या आए मेरे किसी भी इंडेक्स पे, उसे कैमलिन कर दे. सिंपल. ओके Got सर. it? सर हेलो Yes, Swadhin. सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था जो पिरामिड टाइप का, स्टार टाइप का था ना सर, वो मुझे समझ में वो पैटर्न आपको ड्रॉ करना है. वो पैटर्न मींस मे बी क्या है, वो पिरामिड शेप का इस तरह है क्या, क्या है? क्या सर, वो ऊपर वाला तो पिरामिड बन गया, बट वो नीचे वाला पिरामिड नहीं बन गया. नहीं, कैसे है वो, क्या स्टार फॉर्म में दिस वन? हेलो जी सर, स्टार फॉर्म में है सर, स्टार फॉर्म में. फर्स्ट रो में फर्स्ट एक स्टार, दूसरी रो में 2, तीसरे में 3. शायद इस तरह होगा, 4 3 2 इस तरह है. सर ऊपर वाले जो Yes. सेकंड रो है ना, उसमें 2 स्टार्स है. ओके. हेलो हाँ ठीक है. हेलो वेट आई जी चेक. सर, फर्स्ट रो में 1. हाँ ठीक है. Second- वेट सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. दिस वन आई थिंक ठीक है, इस तरह से 4 3 2 and 1, ठीक है, ये होगा. ठीक है, तो दिस इज 5 4. ओके, दिस वन इट्स सिंपल. अगेन फॉर एल्स लूप पढ़ा है. जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाए, किसके लिए, इसके लिए, इसके बाद इसे एल्स लूप में कर दो. और एल्स लूप में कैसे, रिटर्न में चल रहा है. रिटर्न मीन्स दैट पहले 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, इसके रेस्पेक्टिव स्टार को प्रिंट करा दो मल्टीप्लाई करके. इट्स सिंपल. जैसे ही ये वाला लूप किया ना, ये फॉरवर्ड में चल रहा है, ये वाला लूप किस में चलेगा, बैकवर्ड में, रिटर्न करके. यानी एल्स लूप में जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट हो तो वो एल्स के संग जाए. फॉर एंड एल्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाया. समझ में आया मुस्कान एंड स्वाधीन? सर आप तो हिंट तो दे दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए सर. आप ही को सॉल्व करना है, मुझे नहीं करना. ठीक है. जी सर. और बताओ और क्या है, और कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा, किसने लूप अभी सबमिट कर दिया है? लूप का असाइनमेंट सबमिट किसने किया है? जी सर, मैंने कर दिया है. अंशिता ने कर दिया. ओके, और किसने किया? रितिका डन. ओके ग्रेट. मुस्कान ने भी कर दिया, अक्षिता ने भी कर दिया. अच्छा, सबने सबमिट कर दिया है. ठीक है. ओके सर मेरा नाम आया सर, मैं भी कर लिया हूँ सर. मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगा. ठीक है. ओके सर. ओके. ठीक है, तो अभी आज और कल और करके देखना. ठीक है, मैप फिल्टर रिड्यूस से. ठीक है, जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली इवैल्यूएट बेसिस ऑन योर मैप फिल्टर थिंग्स, अगर आपने उस पर यूज किया है. बाकी सारे क्वेश्चंस हो, और कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ, मे बी कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ हैं. आई कैन से ये टफ नहीं था, कैमलिन वाला टफ नहीं था, एंड पैटर्न वाला भी टफ नहीं था. देयर इज अ क्वेश्चन आई थिंक, शायद एक्सपेंडिचर वाला एक कोई क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा. शायद एक क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर वाला, मंथली बेसिस पे है कि अगर वो शायद मेरे मंथली एक्सपेंडिचर मुझे बताता फिर जाए. एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपने एक्सपेंडिचर दिए हुए थे एंड मंथ हम लोगों को लाइक हम लोग मंथ एंटर करें और हमें एक्सपेंडिचर पता चल जाए. हाँ, वो अगर, हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो क्रॉस चेक करना.
जैसे फैब में 25,000 है एंड अप्रैल में भी 25,000 है, तो वो फैब बताएगा, अप्रैल नहीं बताएगा आपको, है ना। तो आपको कोड ऐसा क्रिएट करना है, अगर 25,000 एक्सपेंडिचर दोनों मंथ में है तो वो आपको दोनों के आंसर देते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा एक अच्छा लॉजिक यूज करना पड़ेगा उसके अंदर। सर जिसने असाइनमेंट सबमिट कर दिया वो क्या करे अब? जिसने असाइनमेंट सर सबमिट कर दिया है, ओके। सर शायद वो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया हूँ, आंसर रॉन्ग किया हूँ। देखते हैं सर, आपका इवैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाएगा। अच्छी की वैल्यू क्वेश्चन का लॉजिक बता दो। कौन सा? आई डिडंट गेट अंशिता। की वैल्यू क्वेश्चन का लॉजिक कौन सा? की वैल्यू, अच्छा लेट्स सी। एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। इट्स इजी, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा अंशिता। क्या गिवन लोकेशन बेडरूम, किचन, बालकनी, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब एंड टेबल। इट्स सिंपल, यानी आपका जो की होगा वो ये सारे जो पैरामीटर्स आपने दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस लोकेशन पे तो होगा, या तो बेडरूम पे होगा, किचन पे होगा, बालकनी, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब एंड ठीक है टेबल, इन सारे लोकेशंस पे किसी ना किसी कंडीशन पे। तो आपको क्या करना है, लूप क्रिएट करना है कि अगर इनमें से किसी भी कंडीशन पे हो तो वो की फाउंड कह दे, अगर इनमें से किसी भी कंडीशन पे नहीं है तो की नॉट फाउंड कह दे। तो आपको एक लोकेशन तो की को असाइन करना पड़ेगा पहले, इसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर देगा, ठीक है। यस मुस्कान। सर एक वो फिजबस वाला क्वेश्चन भी था, हाँ वो भी अच्छा क्वेश्चन है फिर। उसके अंदर हमने 5 3 और 3 और 5 तो कर दिया, बट वो जो प्राइम वाला था ना, अब उसने कंडीशन 3 पे तो फिज डाल दिया और 3 5 वाले पे फिजबस डाल दिया, लेकिन वो एल्स की कंडीशन प्राइम वाले हाँ, पे आ ही नहीं तो रही। आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा जिसमें अगर वो नंबर 3 5 प्राइम भी है तो आपको फिज है 3 पे तो फिज विद प्राइम बताए, 5 है तो आपके पास फिज या बिज जो भी जो कंडीशन है वो विद प्राइम भी बताए आपको। यानी 3 और 5 पे चेक करके ऐसा ना करें, वो दोनों को प्राइम भी बताए, तो आपको वो कंडीशन भी लिखना पड़ेगा वहां पे, हाँ तो सर आपको हम देना पड़ेगा। कंडीशन लिखी, बट उसमें क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं, वो पहले इफ पे चेक कर देता है कि वो 3 से डिविजिबल है तो वो फिज प्रिंट कर देता है, बट वो प्राइम वाली लेते ही प्राइम वाली कंडीशन ही नहीं ले रहा। अब वो सोचना पड़ेगा। अब मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, मैंने हिंट दे दिया आपको। तो आप कह रहे हो मैं उसी कंडीशन के अंदर ही प्राइम वाली कंडीशन डाल दूं? हाँ शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा देयर इज अ कंडीशन आल्सो, तो वो चेक करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन है तो चेक भी कर ले उसके संग कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो प्राइम फेज फर्स्ट देता रहे, अगर हो रही है तो वो प्राइम भी मुझे बता दे उसके संग। अच्छा ठीक है सर। यस, एनीवन एल्स? तो लिस्ट कंप्रेंशन पढ़े या ना, या कल ही पढ़े लिस्ट कंप्रेंशन? क्योंकि अब आपका पार्ट जो रह गया एडवांस में लिस्ट कंप्रेंशन रह गया, विच इज डिक्शनरी कंप्रेंशन रह गया है। अच्छा लेट्स सी, डिक्शनरी कंप्रेंशन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे आंसर अभी देना है या फिर कल देना, ठीक है। Let's suppose there is a string which is assigned in variable. This is a statement, I can see simple, ठीक है। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, दिस इज अ स्टेटमेंट। मुझे इसमें से ये पता करना है हर एक लेटर का काउंट कितना है, यानी मुझे कोई ऐसा कोड क्रिएट करना है जो इस पे जाए और इस पे जाके मुझे ये बताए, देखिए यानी हर एक लेटर टी, ओके टी आ रहा है 1 2 3 वेयर 2 3 4, टी का काउंट 4 है। एच पे जाए, यानी मुझे इसमें से जितने भी लेटर्स हैं उनको सेग्रीगेट करके उनके काउंट्स बता दे, टी एच आई एस एम ई एन एंड ए, ये सारे लेटर्स हैं, इनके काउंट करके मुझे बता दे। यानी अगर मेरे पास कोई आर्टिकल भी है, मे बी मेरे आर्टिकल में थाउजेंड्स वर्ड्स हैं, ठीक है, एंड मे बी 10,000 लेटर्स हैं, तो वो मुझे काउंट करके बता दे कि हर एक लेटर का काउंट कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर सेंटेंस
you have to make a loop under which you have to count your individual letters. ठीक है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस सर। कैसे करेंगे ऐसा? लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक हो सकता है? यस मुस्कान। सर मेरे को नहीं पता बट मैं ट्राई मार रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी फॉर आई इन ए, फिर मेरे पास एक फंक्शन होता है काउंट फंक्शन, नो, मैं वो लगा दूंगी लाइक क्या नाम है ए डॉट। अच्छा करके देखना, करके देखना, उससे काउंट से करके देखना। हाँ यू कैन डू इट, मैं ये नहीं कह रहा कि काउंट से नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि काउंट से नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोर हो जाएगा। यानी अगर आप फॉर आई ने टी पे जाओगे, देन टी पे आप काउंट कर रहे हो क्या, ठीक है, ए पे मैं ए डॉट काउंट आई करूंगा विच इज टी, वो मुझे काउंट करके उसकी वैल्यू देगा। फिर अगेन आपको उसकी वैल्यू को अलग से क्रिएट करके देन स्टोर भी कराना पड़ेगा उसका वैल्यू ना, क्योंकि आई को टी का वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, एच देन एच को स्टोर करके उसका वैल्यू काउंट करके स्टोर कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मैं ये नहीं कह रहा लॉजिक इज टोटली इनकरेक्ट, नो इट इज पार्शियली करेक्ट, बट हाँ अगर आप कर सकते हो इट्स रियली गुड। तो इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में सोचो, डिक्शनरी से अगर आप सोच पाओगे, मैं डिक्शनरी पढ़ा है ना सबने, एवरीवन? डिक्शनरी क्या करता था? सर की और वैल्यूज स्टोर करता की था। एंड वैल्यूज, यानी की एंड वैल्यूज, यानी हम इसे सिंपली टी है, इसका काउंट मेरे पास 4, एच काउंट मेरे पास 5, लेट सपोज, मुझे नहीं पता एच 1 2 जितना भी आ रहा हो, ठीक है 1 आ रहा है लेट सपोज, देन आई मे बी 3, क्योंकि मैं डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में से स्टोर कर सकता हूँ क्या, और अगर मैं कर पाया तो डेफिनेटली आई कैन राइट माई कोड मे बी इन 3 or 4 लाइन्स। हाँ मैं 3 or 4 लाइन्स में से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑब्वियसली आप इसे नेस्टेड लूप से कर सकते हो, काउंट से कर सकते हो, देन यू हैव टू जस्ट स्टोर द वैल्यूज आल्सो, बट डिक्शनरी के कंप्रेंशन से सोचोगे इट्स रियली हेल्पफुल। रीजन इज दिस, क्योंकि मैं इसलिए इसे आपको कराना चाहता हूँ, जब हम एनएलपी पे जाएंगे तो हमारे पास टेक्स्ट डेटा बहुत सारा आएगा। इसकी विजुअलाइजेशन के लिए हमें उसमें से टॉप 20 वर्ड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और टॉप 20 वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कोड यूज करना पड़ेगा। क्या, जैसे लेट सपोज मेरे आर्टिकल है ना, ठीक है, तो आर्टिकल में से आप कीवर्ड फाइंड आउट करते हो, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, अब कौन से ऐसे मोस्ट ऑथेंटिक या इंपॉर्टेंट मेरे पास कीवर्ड्स हैं इस आर्टिकल में, तो अगेन यही कोड आपके पास काम आएगा, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो हमें अगेन वो डिक्शनरी कंप्रेंशन पे वर्क करना पड़ेगा विजुअलाइजेशन करने के लिए, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे उसे। गॉट इट? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इसे करके देखना, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इसे करके देखना और फिर मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू लिस्ट कंप्रेंशन, ठीक है। मेरा काउंट सही दिया बस वो रिपीट कर रहा है। हाँ हाँ तो वो एलिमेंट्स रिपीट, क्योंकि वो टी को लेगा, फिर से टी को लेगा, फिर से टी को लेगा, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए वो पार्शियली इनकरेक्ट, बट उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसे सोचना, डिक्शनरी कंप्रेंशन से भी सोचना, इज वेरी 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 इजी, कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कल मुझे बताना इसका, ठीक है, सॉल्यूशन। मैं लेट्स सी लूप्स पे वर्क करना, ठीक है, लूप्स डिफाइनिंग फंक्शन लूप्स पे वर्क कर लेना, देन फिर कल हम लोग लिस्ट कंप्रेंशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले से थोड़ा वर्क कर लो, अदरवाइज एग्जॉस्ट है। अदरवाइज लिस्ट कंप्रेंशन इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, जो अभी तक हमने किया वही सब है, कुछ भी नहीं है। बट जो लाइन कोड आप इतने बड़े लाइनों में कर सकते हो, वो आप 1 लाइन कोड में लिख सकते हो, बस इसीलिए लिस्ट कंप्रेंशन इज वेरी वेरी इजी। जो भी अभी तक हम कर रहे थे वही सिंपल उसे 1 लाइन में कोड को कर रहे हैं आइट्रेशन के साथ, और सिंपली हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं और उस वेरिएबल में स्टोर करके हम उसे कहीं यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो मेरे पास ये डिफाइनिंग फंक्शन है, मैंने इतना बड़ा फंक्शन लिखा, सेम वर्क यू कैन डू जस्ट सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड। तो ये जो हम अब पढ़ रहे हैं ये सब आपके पास क्या है, ये देखो, ये मेरे पास लाइन है, मैंने इसे सिंपल किया, उसने मुझे सिंपल HUMAN करके आंसर दे देगा। ये मेरे पास कोड है, ठीक है, I.I यानी उसका स्क्वायर कर रहा हूँ,
तो सिंपली मैंने उसे आई स्क्वायर आई किया, सेम आंसर मेरे पास आने वाला है, ठीक है, 14916 एंड 14916 2536 इज सिंपल। तो अभी तक आप 1 2 3 4 5 लाइन्स में आंसर को कोड कर रहे थे, बट बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रेंशन यू कैन डू दीज थिंग्स। अब मुझे इवन वैल्यूज का क्या चाहिए, आई स्क्वायर आई चाहिए, 4 16 36 64 100। तो सिंपल आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसके अंदर लॉजिक यूज कर सकते हो। आपको लॉजिक यूज करने यानी नेस्टेड कंडीशन यूज करनी है। कब, यानी वो पहले 2 से देखे फिर 7 से देखे, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड कंडीशन यूज करनी है, देन यू कैन डू इट ऑल्सो। क्या नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हो? यस डेफिनेटली यू कैन यूज नेस्टेड फॉर लूप ऑल्सो। तो देखेंगे कल, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट कंप्रेंशन जो काफी इजी है। कल हम लोग लिस्ट कंप्रेंशन डिक्शनरी कंप्रेंशन पे वर्क करेंगे, ठीक है, और इन्यूमरेट भी देखेंगे एंड जिप भी देखेंगे। तो कल हमारा एडवांस पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे विच इज ऊप्स, ठीक है, ऊप्स एंड द गेम डेवलपमेंट। अगेन मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या ऊप्स अगर समझ में नहीं आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब तक अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो जॉब सीकर्स हैं, अगर आप IBM में जा रहे हो, मे बी इन्फोसिस में जा रहे हो, वहां पे ऊप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट लेट सपोज अगर किसी आप कंपनी में जा रहे हो, मे बी जैमपैक में, ENY में जा रहे हो, KPMG में जा रहे हो, यहाँ कोई आपसे ये क्वेश्चन ऊप्स से नहीं पूछने वाला, क्योंकि आप प्रोफाइल पे जाओगे डेटा एनालिस्ट, क्योंकि उनके पास क्लाइंट के जो वर्क होते हैं वो डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है, इन्फोसिस IBM के पास डेवलपमेंट का वर्क होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, डेवलपर एंड द एनालिस्ट इन द साइंटिस्ट। वैल्यू किसका है? ऐसा डेटा साइंटिस्ट, रियली जो आपको इंसेंटिव डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे मिलेगा वो कभी डेवलपर की पोस्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप पाइथन पढ़ रहे हो, यूएससी जूलिया पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है 2 साल बाद आपके पास जूलिया लैंग्वेज आ जाए, क्योंकि हम लोग पाइथन पढ़े, वो पाइथन छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए ये अपग्रेड होती रहेंगी, बट डेटा साइंस वहां का वहां रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई डेवलपमेंट, अगेन वो आपका क्वेश्चन है कि अगर नहीं समझ में आता है, नो नीड टू वरी, बट समझ में आता है इट्स रियली गुड। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा टफ होता है, वो आर्किटेक्चर है इसलिए। गॉट इट। तो हम लोग पाइथन उसके हेल्प से ही गेम डेवलप करेंगे, ठीक है। चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? हाँ सर। No? Okay, great. Bye. Take care.